Hello everyone. Our today's topic is shapes and angles. First question raised in our mind, what is shape? In geometry, a shape can be defined as a form of an object or its outline, outer boundary or outer surface. Means geometry में किसी भी shape को हम कैसे define करते हैं? उसकी outer boundary से, outline से या उसके outer surface से. Now, there are two types of shapes, open shape and a closed shape. एक ऐसा shape जो कि खुला हुआ है और एक ऐसा जो कि closed है, जैसा कि फिगर में साइड में दिख रहा है. An open shape can be defined as a shape and a figure whose line segment or a curve do not meet. Means open shape एक ऐसा shape है या figure है जिसकी line segment और curve आपस में मिलते नहीं है. They do not start and end at same point. Means वो एक ही जगह पे खुलते या बंद नहीं होते हैं. Closed shape क्या होता है? A closed shape can be defined as an enclosed shape or a figure whose line segment or curve are connected. जिसकी line segment और curve connected होती हैं, उन्हें हम closed shape बोलते हैं. ये start और end एक ही point पर होते हैं. Alright? Now, closed geometrical shape can further be put into broad categories: two-dimensional shape and three-dimensional shape. Two-dimensional shape is flat, वो चपटी होती हैं. It has two dimension, उसमें दो dimensions होती हैं. That is length और breadth, जो कि length होती है और breadth होती है. Three dimensional में क्या होता है? Three dimensional shape is a solid shape होता है. It has three dimension, that is length, width and depth. Now, here are some example of two-dimensional shape and three-dimensional shape. Two-dimensional shape में कौन-कौन से shapes आते हैं? Circle, semicircle, square, rectangle, triangle, pentagon, hexagon, heptagon, octagon, nonagon, decagon. And three-dimensional shape में कौन से shape आते हैं? Sphere, cone, cylinder, prism, pyramid, cube and cuboid. Now we are going to discuss the properties of 2D shapes and 3D shapes. 2D shape में सबसे पहले क्या आता है? Square. Square में क्या होता है? 4 right angles होते हैं, 4 line of symmetry होते हैं. Triangle में क्या होता है? Triangle में angle का total कितना होना चाहिए? 180 और 3 corners होते हैं. Rectangle में 4 right angles होते हैं, 2 line of symmetry होते हैं. Trapezium में क्या होता है? 1 pair of parallel sides होते हैं और 4 vertices होते हैं. पैरेललोग्राम में क्या होता है? 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होते हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, नो लाइन ऑफ सिमेट्री. रोम्बस में क्या होता है? 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, अपोजिट एंगल आर इक्वल, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री. काइट में क्या होता है? एडजेसेंट साइड आर इक्वल और एक ही लाइन होती है सिमेट्री की. नाउ 3D प्रॉपर्टीज क्या होते हैं? उसमें सबसे पहले कौन सा शेप आता है? कोन. कोन में क्या होता है? 2 फेसेस होती हैं, 1 एज होती है, 1 वर्टेक्स होते हैं. स्फेयर में क्या होता है? 1 फेस होता है, 1 एज होती है और 0 वर्टिसेस होते हैं. नाउ टेट्राहेड्रॉन में क्या होता है? 4 फेसेस होती हैं, 6 एजेस होती हैं, 4 वर्टिसेस होती हैं. क्यूबॉइड में क्या होता है? 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती हैं, 8 वर्टिसेस होती हैं. सिलेंडर में क्या होता है? 3 फेसेस होते हैं, 2 एजेस होते हैं, 0 वर्टिसेस होते हैं. और नाउ 6 फेसेस किस में होते हैं? क्यूब में होते हैं, 12 एजेस होती हैं, 8 वर्टिसेस होती हैं. ट्रायंगुलर प्रिज्म में क्या होता है? 5 फेसेस होते हैं, 9 एजेस होते हैं और 6 वर्टिसेस होते हैं. स्क्वायर बेस प्रिज्म में क्या होता है? 5 फेसेस होते हैं, 8 एजेस होती हैं और 5 वर्टिसेस होती हैं. Now, here are the definitions of the 2D shapes. First one is circle. A circle is a round shaped figure that has no corner or edges. Means circle में round shape की figure होती है जिसमें कोई corner नहीं होता, ना ही कोई edges होती हैं. In geometry, a circle can be defined as a closed or a two-dimensional curved shape. Geometry में circle को क्या बोलते हैं? एक closed shape बोलते हैं और curved shape भी बोल सकते हैं. Now, semicircle. A half circle is a part of a circle bounded by a diameter and a half of the circumference. Means a half circle जो होता है वो bounded होता है एक diameter के through और circumference का भी half होता है. Oval क्या होता है? It has no straight line and vertices. The oval shape has one flat face similar to an egg. Oval क्या होता है?
उसमें कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती है, ना ही वर्टिसेस होती हैं। ओवल एक फ्लैट चपटा शेप होता है, बिल्कुल एक एग की जैसा। नाउ ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? अ ट्राइंगल इज अ क्लोज टू डायमेंशनल शेप विद 3 स्ट्रेट लाइन। ट्राइंगल क्या होता है? 2 डायमेंशनल शेप है और 3 स्ट्रेट लाइन होती हैं इसमें। ये एक क्लोज शेप है और इसमें इसको हम पॉलीगॉन भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पॉलीगॉन। नाउ स्क्वायर। A square is a closed two-dimensional shape with 4 equal sides and 4 equal angles, each measuring 90 degree. A square is also known as quadrilateral. Means square होता है वो closed shape है, two-dimensional shape है, इसमें 4 equal side होती हैं, 4 equal angle होते हैं और सारे angle 90 degree के होते हैं. Now, a rectangle is a 2D shape in geometry having 4 sides and 4 corners. It has 2 sides meet at right angles. The opposite side of a rectangle have the same length and are parallel. Means rectangle क्या है? 2D shape है और इसमें 4 side और 4 corner होते हैं। सारे साइड स्ट्रेट राइट एंगल पे मिलते हैं और अपोजिट साइड्स या अपोजिट कॉर्नर जो होते हैं उसकी लेंथ और लेंथ सेम होती है। Parallelogram is a quadrilateral with 2 pair of parallel sides. The opposite side of parallelogram are equal length and opposite angle are equal measures. Parallelogram quadrilateral होता है, इसमें 2 pair of parallel sides होती हैं और opposite side equal length की होती हैं और opposite angle equal measure के. Now rhombus. Rhombus is a special type of parallelogram whose all sides are equal. रोम्बस एक स्पेशल टाइप का पैरेललोग्राम है जिसकी हर साइड इक्वल होती है। नेक्स्ट वन इज ट्रेपेजॉइड। A trapezoid is also known as trapezium. It is a flat closed shape having 4 straight sides with one pair of opposite sides are parallel but other 2 sides of it are not parallel. मीन्स ट्रेपेजॉइड जो होता है उसको हम ट्रेपेजियम भी बोलते हैं। ये एक फ्लैट शेप होता है, इसमें 4 साइड होती हैं, 2 साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं, 2 साइड पैरेलल नहीं होती हैं। नेक्स्ट वन इज काइट। Kite is a quadrilateral whose 4 sides can be grouped into 2 pair of equal length sides that are adjacent to each other. काइट एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें 4 साइड होती हैं, जिसमें 2-2 साइड्स के ग्रुप होते हैं जो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नाउ पेंटागन। अ पेंटागन इज अ पॉलीगॉन which has 4 side and 5 angle. Sorry, 5 side and 5 angles. Now hexagon is a polygon which has 6 side and 6 angles. Heptagon. A heptagon is a polygon which has 7 side and 7 angles. Octagon. Octagon is a polygon which has 8 sides and 8 angles. Octa means 8. Next one is nonagon. Nonagon is a polygon which has 9 sides and 9 angles. Decagon. A decagon is a polygon which has 10 sides and 10 angles. Okay. Now 3D shapes कौन से होते हैं? Sphere. First one is sphere. Sphere क्या होता है? Sphere is a round ball shaped solid. एक round बॉल की तरीके से सॉलिड होता है। इट हैज नो कॉन्टिन्यूअस सरफेस विद नो एजेस और वर्टिसेस। इसमें कोई कॉन्टिन्यूअस सरफेस नहीं होता, ना ही एजेस होती, ना ही वर्टिसेस होती है। A cube is a rectangular solid in which each face is square is called cube. क्यूब क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर सॉलिड है जिसमें कि हर फेस स्क्वायर दिखती है, इसे हम क्यूब बोलते हैं। Now what is cuboid or rectangular prism? A rectangular solid which has 6 faces, each of which is a rectangle, is called cuboid. इसमें क्या होता है? ये भी एक सॉलिड फेस है, इसमें 6 फेसेस होते हैं और हर फेस रेक्टेंगल दिखता है। क्यूब में क्या था? हर फेस स्क्वायर दिखता था। क्यूबॉइड में क्या होता है? हर फेस रेक्टेंगल होता है। ओके। नेक्स्ट वन इज कोन। A cone is a distinctive 3-dimensional geometrical figure that has a flat surface and a curved surface pointed towards the top. The pointed end of a cone is called apex, whereas the flat surface is called the base. कोन एक डिस्टिंक्टिव 3-dimensional geometrical figure है जिसमें कि एक फ्लैट सरफेस होता है और एक कर्व सरफेस होता है जो कि पॉइंटेड होता है टॉप पर। ठीक है। और जो हमारा एंड होता है टॉप वाला उसे हम बोलते हैं एपेक्स और जो नीचे वाला बेस होता है उसे सरफेस उसे हम बेस बोलते हैं। नेक्स्ट वन इज सिलेंडर। इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ प्रिज्म विद अ सर्कल एज इट्स बेस। इसको हम प्रिज्म के तरीके भी कंसिडर कर सकते हैं जिसका बेस सर्कुलर होता है। ओके।
Hope you understand the topic shapes. Now, next one is angles. What are angles? An angle is formed when two rays are joined together at a common endpoint. If the angle are measured from a line, we can find two different type of angles, such as positive angle and negative angle. Means angle का फॉर्म होता है जब टू रेज जो होती हैं वो ज्वाइन होती हैं एक कॉमन एंड पॉइंट पर, ठीक है। और जब हम एंगल को मेजर करते हैं तो हम फाइंड क्या करेंगे, उसमें दो तरीके के एंगल होते हैं, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, मेजरमेंट के हिसाब से। तो पॉजिटिव एंगल कौन सा हुआ, इफ द एंगल गोज इन एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंगल हमारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है मींस क्लॉक की डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो उसे बोलेंगे पॉजिटिव एंगल, और अगर एंगल हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे हम बोलेंगे नेगेटिव एंगल। ओके, नाउ हाउ टू मेजर द एंगल्स, एंगल को मेजर कैसे करते हैं। द एंगल्स आर जनरली मेजर्ड इन डिग्रीज, इसको डिग्री में मेजर करते हैं। एन इम्पोर्टेंट ज्योमेट्रिकल टूल दैट हैज टू मेजर द एंगल इन डिग्री इज अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर होता है, आप लोग को पता होगा, डी शेप में आता है, उसे हम डी भी बोलते हैं, उससे हम अपने एंगल्स को मेजर करते हैं। इट हैज टू सेट ऑफ नंबर्स गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, उसमें दो सेट ऑफ नंबर होते हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, एक लेफ्ट टू राइट जाएगा, एक राइट टू लेफ्ट आता है। उसके बाद क्या होता है, वन सेट गोज फ्रॉम 0 to 180 डिग्री ऑन द आउटर रिम एंड अदर गोज टू फ्रॉम 180 to 0 डिग्री ऑन द इनर रिम। यानी अंदर की लाइन में क्या होता है 180 से 0 तक आता है, और वो बाहरी लाइन में क्या होता है 0 to 180 आता है। These are the types of angles. कौन कौन से एंगल्स होते हैं, स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री का होता है, रिफ्लेक्स एंगल जो ग्रेटर देन 180 होता है, फुल एंगल 360 डिग्री का होता है, एक्यूट एंगल जो लेस देन 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूज एंगल जो ग्रेटर देन 90 डिग्री और लेस देन 180 डिग्री है, और राइट एंगल क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल होता है। A series of angle formed when the transversal cut two or more lines, जब ट्रांसवर्सल दो या उससे ज्यादा लाइंस को कट करता है तब एक एंगल फॉर्म्ड होता है। स्पेसिफिक नेम आर गिवन टू द पेयर ऑफ एंगल, तो हम हर पेयर ऑफ एंगल को एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, डिपेंड्स ऑन द लोकेशन ऑफ द एंगल इन रिलेशन टू द लाइंस। किस टाइप से उसको नेम देते हैं कि उसकी लोकेशन क्या है ना, उसके हिसाब से उसको हम लाइंस पे डिवाइड कर देते हैं। द लाइंस में बी आइदर पैरेलल लाइन, पैरेलल भी हो सकती है एक दूसरे की और पैरेलल नहीं भी हो सकती है। इसी के हिसाब से हम इम्पोर्टेंटली एंगल्स को पेयर करते हैं अलग अलग नामों से। ऑलराइट, नंबर 1 क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग एंगल, देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल, एडजेसेंट एंगल एंड वर्टिकल एंगल। Now, these are the properties of angles. Angles की properties क्या क्या होती हैं? The sum of all angle on the side of a straight line is always equal to 180 degree. Means सारे angles का जो addition है वो क्या होना चाहिए, 180 degree होना चाहिए। The sum of all angles around the point, point के around अगर है तो उसकी addition क्या होना चाहिए, 360 degree होना चाहिए। अगर लाइन सिंगल लाइन जो हमने खींची है उसके ऊपर वाले सारे एंगल बन रहे हैं सिर्फ, तो उसका एडिशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और अगर सर्कल डॉट जो सेंटर में लगाते हैं उसके चारों तरफ एंगल बन रहा है तो उसका एडिशन कितना होना चाहिए, 360 के इक्वल होना चाहिए। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीरियर एंगल एंड एक्सटीरियर एंगल। इन मीन्स क्या हुआ, अंदर का, इसी से नाम से ही पता चल रहा है कि इंटीरियर एंगल किसको बोलेंगे, जो अंदर के साइड होगा। द एंगल्स व्हिच इज फॉर्म्ड ऑन द इनसाइड ऑफ अ शेप इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल, वेयर एज द एंगल फॉर्म्ड ऑन द आउटसाइड ऑफ अ शेप आर कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल, और जो बाहर के साइड होगा वो उन्हें क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडजेसेंट एंड वर्टिकल एंगल्स। If two angles share a common vertex and arm, अगर कोई दो एंगल्स एक कॉमन वर्टेक्स और आर्म को शेयर कर रहे हैं, देन द एंगल आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल, तो इसे एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। यानी ऐड मतलब दो चीजें ऐड हो रही हैं आपस में, इसे बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। वर्टिकल एंगल आर द एंगल अपोजिट ईच अदर, वर्टिकल एंगल क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट होता है, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, और दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही होती हैं, उसे बोलते हैं वर्टिकल एंगल। Now, what are corresponding angles? The angles which occupy the same relative position at each intersect where a straight line crosses the two others. If two lines are parallel, the corresponding angles are equal.
ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल कौन से हुए, जो कि सेम पोजीशन के तरीके दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर डायग्राम में शो हो रहा है एंगल EGB एंड FHD, ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल इक्वली इंटरसेक्ट कर रहे हैं टू लाइंस को, इन्हें बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। नाउ एडजेसेंट एंगल कौन से थे, जो जिसमें दो एंगल ऐड हो रहे होते थे। जैसे कि यहाँ डायग्राम में शो हो रहा है, दो एंगल शो हो रहे हैं, एक साथ ही ऐड होते हुए दिख रहे हैं। The two angles are said to be adjacent angle when they share the common vertex and side। ये एक ही पॉइंट से दो एंगल निकल रहे हैं, ओके, तो इन्हें क्या बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। ये कॉमन वर्टेक्स और साइड को शेयर कर रहे हैं। नाउ वर्टिकल एंगल कौन से होते हैं, जो कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे डायग्राम में शो हो रहा है एंगल 2 and 4, ये एक दूसरे के अपोजिट साइड है। 2 and 4 अपोजिट साइड है और 1 और 3 भी अपोजिट साइड है। ये क्या हुए, वर्टिकल एंगल्स हुए। तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, व्हेन ईच ऑफ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल मेड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड वर्टिकल एंगल। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट हमारा आ गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये देखने में तो करस्पॉन्डिंग एंगल जैसा ही लग रहा है, लेकिन अगर हम पूछेंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा हुआ, तो इसमें एंगल इंटीरियर कौन से, यानी अंदर के कौन कौन से एंगल्स हैं, 3, 4, 5 एंड 6, क्योंकि ये दो लाइंस के बिटवीन है। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या हुई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर द एंगल्स formed when a transversal intersect two coplanar lines। टू कोप्लेनर लाइंस दिख रही हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रही है। ओके, they lies on the inner side of a parallel lines but on the opposite side of a transversal। inner line है दोनों parallel lines के और opposite side है transversal के। now alternate exterior angle कौन से हुए, x मतलब outside, x यहाँ पर शो हो रहा है 1, 2, 7 एंड 8, ये क्या है, आउटसाइड है पैरेलल लाइन के, तो इन्हें बोलेंगे हम एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। Alternate exterior angle are a pair of angle that are outside the two parallel line, दो पैरेलल लाइन के बाहर साइड जो होते हैं, but on either side of a transversal, लेकिन ट्रांसवर्सल के either side होते हैं, मानी means left side and right side। Hope you understand the topic, children. Thank you.